Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class. Students, today we are going to start the chapter number 4, that is the gases. Today we have the first lecture of this chapter. The topics of today's lecture are Introduction to Gases, Kinetic Molecular Theory of Gases, Kinetic Equation, Motion of Particles of a Gas, Absolute Temperature Scale on the basis of the Charles Law, Gas Pressure in the light of the KMT. KMT stand for the Kinetic Molecular Theory. First of all, introduction to gases. The word gas is derived from the chaos. This is because the gaseous particles have the chaotic random motion. The molecules travel in a straight line until they collide with each other or with the wall of container. This type of motion of the molecule is called the Brownian movement. Brownian is actually the name of a scientist. Complete name is Robert Brown in 1827. Effect of pressure on the gases. In the gas, the average distance between the gas molecules is quite large as compared to their diameter. This shows that the intermolecular forces among the molecules are negligible at the lowest pressure. But student, as we will increase the pressure, these forces will be enhanced. Or you can say these forces, the intermolecular forces, will be prominent. For example, the forces are negligible at 1 atmosphere, that is lowest, significant about the 10 atmosphere, and are very important at the high pressure, that is about the 30 atmosphere. तो स्टूडेंट जैसे जैसे हम लोग अगर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से दो काम होते हैं. नंबर 1, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं. अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान 1 एटमॉस्फेयर पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत निग्लिजिबल थी, तो अबाउट 10 एटमॉस्फेयर पे दैट विल बी अ लिटल प्रोमिनेंट, एंड अबाउट 30 एटमॉस्फेयर पे अगर हम प्रेशर मज़ीद इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी. It is found that it is found by the experiment that when the pressure is sufficiently low, all gases satisfied the perfect gas law, that is the PV is equal to nRT. जितना प्रेशर हमारे पास कम होगा गैसेस उतना आइडियल बिहेव करेंगी, और जैसे से हम प्रेशर इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आइडियल बिहेवियर जो है वो डिविएट करना शुरू हो जाता है. ओके, PV is equal to nRT इज एक्चुअली द जनरल गैस इक्वेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिराइव करेंगे. Kinetic molecular theory of the gases. First of all, the introduction of the kinetic molecular theory. The kinetic molecular theory was first postulated by a scientist, Daniel Bernoulli. The kinetic theory of the gases was elaborated and extended by a number of well-known physicists such as the Maxwell, then Boltzmann, and 1857 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्लॉसियस था. उन्होंने kinetic equation दी and which deduced all the gas laws from it. Okay, what are the postulates of the kinetic molecular theory? Number 1, gases consist of the tiny particles, that is atom or molecules, and these particles are so small compared with the distance between them, and that the volume size of the individual particle can be assumed to be negligible, that is the zero. Okay, the particles are in the constant random motion colliding with the wall of container, and this collision with the wall cause the pressure exerted by the gas. Continuously gas के molecules आपस में भी randomly collide कर रहे होते हैं, and with the wall of container भी collide कर रहे होते हैं, और इनकी आपस में random collision की वजह से जो हमारे पास कंटेनर की वॉल है उस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है. Molecular collision are perfectly elastic. This means that when the molecules collide with each other and with the wall of container, we assume that the loss no energy at all and they never slow down, always stay at the same speed. क्योंकि molecules आपस में भी collide कर रहे होते हैं, with the wall of container भी collide कर रहे होते हैं, तो इनका जो complete molecular collision होता है that is perfectly elastic. कोई loss नहीं होता है, बल्कि तमाम का तमाम जो हमारे पास जो इनका collision होता है उसमें इनकी स्पीड सेम होती है. The average kinetic energy of the gas particles is directly proportional to the Kelvin temperature of the gas. That is, whenever we will provide the temperature, by providing the higher temperature, the higher the energy of the gas we will observe. ठीक है, temperature we can say that the temperature is directly proportional to the kinetic energy. जैसे जैसे हम temperature increase करेंगे गैस के molecules के दरमियान kinetic energy भी increase होना शुरू हो जाएगी. So we can say that the kinetic energy is directly proportional to the temperature.
Kinetic equation. Explanation. Kinetic equation was deduced by the scientist Clausius. He deduced an equation for the pressure of an ideal gas from the postulate of the kinetic molecular theory, and this equation is known as the kinetic equation. What is the mathematical expression for the kinetic equation? That is the kinetic equation. PV is equal to 1 over 3 mn, and that is the c square. P stand for the pressure, V is for the volume, m is the mass of one molecule of the gas, n is the number of moles of the gas, and that is the c square. That is actually known as the mean square velocity of the gas molecules. Since the molecules of a gas under the given condition do not have the same velocity, क्योंकि गैस के कुछ molecules होते हैं उनकी movement बहुत fast होती है, कुछ की बहुत slow होती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, we take the mean square velocity is considered. For example, for n1 molecule हमारे पास velocity अगर c1 है, c1 stand for the velocity, ठीक है. अगर n1 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c1 है, n2 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हमारे पास c2 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से. मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास कैसे आती है, दैट इज़ द n1 c1. अगर हमारे पास n1 मॉलिक्यूल है तो उसकी वेलोसिटी c1 स्क्वायर होगी, प्लस n2 मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है तो उसकी वेलोसिटी c2 को कंसिडर किया जाएगा, c स्क्वायर 2 को कंसिडर किया जाएगा. इस तरह तमाम वेलोसिटीज़ को प्लस करने के बाद डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस से, ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाती है. ये हम क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि एक कंटेनर के अंदर तो तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, उन तमाम की वेलोसिटी सेम नहीं होती है, जिसके लिए हमें मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेनी पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ कम टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस. According to the kinetic molecular theory, the molecules are always in the state of haphazard motion. As a result, due to their motion, they will have the certain kinetic energy. The increase or decrease of temperature will increase or decrease their motion. Obviously, as we know that by increasing the temperature, हमारे पास kinetic energy increase होगी, और जब kinetic energy increase होगी तो हमारे पास गैस के molecules जो हैं उनकी motion भी increase और decrease होगी, ठीक है. In gas, the molecular motion is of three types. Number 1, translational motion. Number 2 is the rotational motion. Number 3 is the vibrational motion. ये 3 टाइप्स की मोशन होते हैं जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स में हमारे पास होते हैं. अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल हीलियम, ये हमारे पास इस तरह के और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो कि मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली नोबल गैसेस, विल शो ओनली द ट्रांसलेशनल मोशन, while the diatomic molecule or polyatomic molecule will undergo, in addition to the translational motion, the rotational and vibrational motion too. ठीक है. सिर्फ मोनोएटॉमिक हमारे पास होंगे जो कि ट्रांसलेशनल मोशन शो करेंगे, बाकी तमाम हमारे पास होंगे वो तीनों तरह की जो मोशन है उसको शो करेंगे. फर्स्ट इज़ द, जस्ट ऑब्जर्व द डायग्राम हमारे सामने जो है वाइब्रेशनल मोशन. वाइब्रेशनल मोशन में देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इस तरह से हो सकती है हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन, दैट इज़ द बेंडिंग. वाइब्रेशनल मोशन मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन ऑल 3 फेसेस. बेंडिंग भी हो सकती है, सिमेट्रिक भी हो सकती है. सिमेट्रिक का मतलब ये है कि यहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं सेम स्पीड के साथ सेंटर मॉलिक्यूल से दूर भी जाएंगे, उतनी ही सेंटर मॉलिक्यूल से करीब भी आएंगे. इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. एंड सेकेंडली हमारे पास थर्ड जो टाइप है वाइब्रेशनल मोशन की, दैट इज़ द एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है और यहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा सेम हो. हमारे पास एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी हो सकती है कि ये हमारे पास जो सेंटर एटम है कभी इस एटम के पास ज़्यादा नज़दीक हो जाता है और कभी इस एटम की तरफ वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है. सेम भी हो सकती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी हो सकती है और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी हो सकती है. सेकेंड इज़ द रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन मॉलिक्यूल इज़ रोटेटिंग और द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर रोटेटिंग गैस एंड लिक्विड फेज. हमें गैस और लिक्विड में ये मॉलिक्यूल्स में हमें रोटेशन हमें शो होती है. आप देख सकते हैं रोटेशन हमारे पास किस तरह से हो रही है. हमारे पास क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन मोशन भी हो सकती है, ठीक है. एंड थर्ड इज दैट इज द ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन मॉलिक्यूल्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लिक्विड और गैसेस में होती है. और आप देख सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में मॉलिक्यूल्स फ्रीली जितना भी स्पेस दिया जाता है, जितना भी एरिया जो ऑक्यूपाई किया जाता है गैस के मॉलिक्यूल से, उन तमाम में ईजिली मूव कर रही होती हैं, ठीक है. सॉलिड्स कैन नॉट मूव थ्रू द स्पेस, सो दे कैन ओनली वाइब्रेट. Liquid or gases are free to move around in space, so they can have all 3 modes of the motion. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स
3 टाइप्स की मोशन होते हैं, एक होता है वाइब्रेशनल, सेकेंड इज द रोटेशनल एंड थर्ड इज द ट्रांसलेशनल. Okay students, now the next topic is the absolute temperature scale on the basis of the Charles law. Absolute टेम्परेचर स्केल को इसके अलावा हम कैल्विन स्केल भी कहते हैं, एंड आई एम श्योर आप इस कैल्विन स्केल से बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर होंगे. Absolute temperature scale, the Charles law state that the volume of a given mass of a gas increase or decrease by 1/273 time of its original volume and reduce the pressure and reduce the two zeros. I'm sorry, मैं दोबारा repeat कर लेती हूँ. The Charles law states that the volume of a given mass of a gas increase or decrease by 1/273 time of its original volume and reduce to zero at minus 273.15 degree centigrade. Actually, this temperature a gas does not remain in the gaseous state but change into the liquid or solid. Students, हमारे पास according to the Charles law हमारे पास ये जो हमारे पास एक टेम्परेचर है जिसको कहा जाता है दैट इज़ द -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. ये टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पे जाके हमारे पास कैल्विन स्केल स्टार्ट होता है, ठीक है. लेकिन हमारे पास जो कैल्विन स्केल का जो ये टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर हमारे पास इतना लोवेस्ट टेम्परेचर होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स इस टेम्परेचर तक आते आते या लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. हमारे पास गैस नहीं रहता है बल्कि वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द लिक्विड और सॉलिड, ठीक है. तो यही जो हमारे पास टेम्परेचर है, यहाँ से हमारे पास कैल्विन स्केल स्टार्ट होता है. Lord Kelvin was the name of scientist, succeed in measuring the gas with the help of a new scale called the absolute Kelvin temperature scale. According to this scale, 273.15 degree centigrade is the starting point of the scale on comparing with the Celsius scale, which start with the 0 degree centigrade. Two scales are related as. हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी टेम्परेचर दिया जाए डिग्री सेंटीग्रेड में और हम इसे कन्वर्ट करना हो कैल्विन स्केल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 273 हम प्लस करेंगे तो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड की जो वैल्यू होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द कैल्विन स्केल. और कैल्विन स्केल जो है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द एब्सोल्यूट कैल्विन स्केल भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हमारे पास अगर हमें टेम्परेचर दिया जाता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेल्सियस टेम्परेचर टू द कैल्विन टेम्परेचर. अगर हमें दे दिया जाए डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर -132 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर दे दिया जाए और कहा जाए इसको कैल्विन में कन्वर्ट करें, तो हम क्या करेंगे, -132 में प्लस करेंगे 273, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 141 टेम्परेचर कैल्विन में. अगर हमें दे दिया जाए 96, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 98 लिखी हुई है, अगर 98 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर दे दिया जाए, कन्वर्ट करना हो हमें कैल्विन स्केल के अंदर, तो हम 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द 369 कैल्विन टेम्परेचर में. तो इस तरह से अगर हमें कोई भी वैल्यू दे दी जाए और कहा जाए हमें कि उसको कन्वर्ट करना है इनटू द कैल्विन स्केल, तो दोनों का रिलेशन आपस में क्या होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड की जो भी टेम्परेचर की वैल्यू गिवन होगी उसमें 273 ऐड कर दिया जाएगा. और 273 ऐड हमारे पास क्या है, ये वो टेम्परेचर है, एट दिस टेम्परेचर गैस डज नॉट रिमेन इन द गैसियस स्टेट बट चेंज इनटू द लिक्विड और सॉलिड. बट इसी टेम्परेचर को हम लोग यूज़ करते हैं to convert the degree centigrade into the Kelvin scale. Relationship between the temperature and average kinetic energy of particles in the gas. The temperature of a gas depends upon the kinetic energy of the molecules. The increase of temperature increase the average kinetic energy of the gas molecules and vice versa. Derivation हमारे पास इसकी है. ओके, डेरिवेशन में स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर का और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है. लेकिन अगर आपको याद हो, अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले जब मैंने KMT डिस्कस करी थी आपके साथ, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास उसी स्पीड में इंक्रीज़ होगी. जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स भी उतनी ही इंक्रीज़ होगी. इस चीज़ को भी हम डेरिवेशन के जरिए समझते हैं. द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स कैन बी explained with the help of the kinetic equation of the gases. According to the equation, आप ज़रा इसको ऑब्जर्व करें. According to the kinetic equation, हमारे पास kinetic equation की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या थी kinetic equation की वैल्यू, दैट इज़ द PV इज इक्वल टू 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी. अभी मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ को. एंड वी नो अबाउट द kinetic energy. kinetic energy का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ½ m
मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप देख सकते हैं यहाँ v नहीं लिखा गया बल्कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जब हम वो गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक सिंपल v नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि गैस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और गैस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट बिहेवियर होता है, डिफरेंट वेलोसिटी होती है, जिसकी वजह से हमें उसका मीन स्क्वायर लेना पड़ता है। हम उसकी वेलोसिटी v नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अगेन कंसिडर, हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn मीन स्क्वायर बार। अब इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है इसमें, और देखें किस तरह से कन्वर्ट किया है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यू है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 करें ऑन बोथ साइड, अगर हम इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें काइनेटिक इक्वेशन को, अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से ऑन बोथ साइड, यहाँ से भी पी वी को भी कम मल्टीप्लाई बाय 2 करें और यहाँ से हाफ तो नहीं 1/3 mn मीन स्क्वायर को भी हम मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, किस तरह से 2/3 हमारे पास हो जाएगा। ओके, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ किस तरह से होगा। हमारे पास 2PV इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 और यहाँ हमारे पास mn और मीन स्क्वायर बार आ जाएगा हमारे पास इसके ऊपर। ठीक है, तो अब अगर हम इसको इस वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाती है। ये 2 की वैल्यू जो है, ये वाली 2 की वैल्यू, इसको हम लोगों ने यहाँ पर mn के साथ लिख लिया और बाकी तमाम वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि हाफ m मीन स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू सेम आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू की जगह पर हमने ke लिख लिया, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। Now consider 1 mole of gas, it will possess the Avogadro's number of molecules, so we can say n is equal to Na। अगर हम 1 मोल की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 मोल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, ऑब्वियसली एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या हम उसकी जगह एवोगैड्रोस नंबर लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट n इज इक्वल टू Na, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास PV इज इक्वल टू की जो वैल्यू है वो चेंज होके n की जगह पर Na हम लिख लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन, जो कि आपको भी मैंने पोस्टुलेट से बता दी थी आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, तो उसमें आपको बताया था जनरल गैस इक्वेशन जो हमारे पास होती है दैट इज़ द PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। हमारे पास क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। नाउ कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशंस, इक्वेशन 4 एंड 5 अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन 4 की जो ये वैल्यू है और ये जो हमारे पास आ गई है इक्वेशन 5 की वैल्यू, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में PV की वैल्यू जो हमारे पास है उसको हमने यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, PV की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 Na काइनेटिक एनर्जी, उस वैल्यू को हमने यहाँ पर PV की जगह पे पुट कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ कंप्लीट मज़ीद अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास 3 को हम यहाँ लिख लेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये हो जाएगा। मज़ीद अगर हमें क्योंकि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए 2Na की वैल्यू यहाँ 3RT के नीचे न्यूमरेटर में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। अब अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास R जो है दैट इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट। अगर हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल गैस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर भी हमारे पास कांस्टेंट है, 3/2 भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो इन तमाम कांस्टेंट के लिए हमने एक ही कांस्टेंट K लिख लिया। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ एक ही कांस्टेंट K लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एक ही हमने कांस्टेंट K लिख दिया है और हमारे पास टेम्परेचर एज इट इज़ आ जाएगा। तो अगर हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू को और इक्वल टू की वैल्यू को अगर हम लोग रिमूव करें प्रोपोर्शनल के साइन से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो कि आपको ये बात बताई गई थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या रिलेशनशिप है, ऑब्वियसली हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो कि हमने डेरिवेशन के थ्रू हम लोगों ने इसको
कंफर्म भी कर लिया, प्रूव भी कर लिया। कंक्लूजन, द Kelvin टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज एक्चुअली द मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल in gases and liquid. The temperature explains the translational energy of the molecules. In solid, where the molecules cannot move freely, temperature becomes a measure of the vibrational energy, vibrational kinetic energy. हमारे पास अगर kinetic energy की बात करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की मेनली हम ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हम लोग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। नाउ कम टू द गैस प्रेशर इन द लाइट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। According to the kinetic molecular theory, gas molecules are in the constant random motion. They move in the straight line until they collide with one another or with the wall of container. The pressure of the gas in the container is due to the pressure in the gas of container is due to the force exerted by its molecules on the wall of container. The average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the Kelvin temperature. So the average kinetic energy of a collision when a gas molecules collide with the wall of container will not change at the constant टेम्परेचर। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स रिमेंबर, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट फास्ट होती है, और मूवमेंट फास्ट होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इंक्रीज़ होता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर पे। तो अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी और हमारे पास जो प्रेशर है वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। गैसियस प्रेशर, डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की हमारे पास डेफिनेशन क्या है? अ फोर्स बीइंग exerted over a unit area is called the pressure. इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। फोर्स हमारे पास मेजर इन द न्यूटन फोर्स हमारे पास न्यूटन में है, इन जूल, एंड इन द एरिया हमारे पास स्क्वायर मीटर में है। पास्कल में भी हम इसको ले सकते हैं। अब पास्कल इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ द न्यूटन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ द 1 स्क्वायर मीटर। हम इस दोनों में इसमें प्रेशर में ले सकते हैं, या तो हम इस तरह न्यूटन में लें और या फिर हम इसको पास्कल में भी ले सकते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर, स्टूडेंट्स ये यूनिट्स की जो कन्वर्जन आपको दिखाई जा रही है यहाँ पे, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आप वैल्यूज़ को एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, SI यूनिट ऑफ द प्रेशर इज़ पास्कल, SI सिस्टम यूनिट इज़ न्यूटन, एंड द यूनिट ऑफ द एरिया इज़ द मीटर स्क्वायर। दस द पास्कल इज़ 1 न्यूटन पर मीटर। 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास दैट इज इक्वल टू द 101325 पास्कल, दैट इज इक्वल टू द 101325 न्यूटन स्क्वायर मीटर। 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास 14.7 साई के भी इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास 101325 पास्कल के होता है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, ऊपर वाला हमारे पास पास्कल है, नीचे वाला जो हमारे पास लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू जो है दैट इज़ अ किलो पास्कल। इसके अलावा अगर टॉर में आपसे कहा जाए या मिलीमीटर मरकरी में कहा जाए तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द 760 टॉर, दैट इज इक्वल टू द 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 1 जूल इज इक्वल टू द 1 न्यूटन मीटर, दैट इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट 7 अर्ग्स। और इसके अलावा ये हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम स्क्वायर मीटर एंड पर स्क्वायर सेकेंड। 1 कैलोरी इज इक्वल टू द 4.18 जूल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तमाम यूनिट्स जो हैं ये आपको याद रखनी है और ये कन्वर्जन में आपने अप्लाई करना है। इंटर कन्वर्जन ऑफ द प्रेशर इन द पास्कल, किलो पास्कल एंड टेम्परेचर। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 10 पास्कल इनटू द 1 किलो पास्कल एंड इनटू द एटमॉस्फेयर। किस तरह से करेंगे? वी नो वेरी वेल 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू द 1000 पास्कल। हमें क्या करना है? 10 पास्कल को कन्वर्ट करना है इनटू द किलो पास्कल। 10 पास्कल को कन्वर्ट करना तो हम कहते हैं 1000 पास्कल इज इक्वल टू द 1 किलो पास्कल। तो 10 पास्कल कितना होगा? तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ द 10 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास 0.01 किलो पास्कल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हमें अगर पास्कल को कन्वर्ट करना है इनटू द एटमॉस्फेयर तो हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द 101325 पास्कल। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम 10 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 101325 पास्कल से, तो हमारे पास वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द 0.00098 एटमॉस्फेयर।
ठीक है। तो ये आपके पास कन्वर्जन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको तमाम जो कन्वर्जन वैल्यूज़ हैं वो याद हों, ठीक है, तभी आप ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। होपफुली आप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद कंटिन्यू करेंगे हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।